और सीधे आपको लिए चलते गोवा एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। India has always stood for multilateral approaches to addressing global challenges and has always been a willing partner in sharing our expertise and experience. In this regard, India's own achievement in the field of startups and innovation is a remarkable journey. Today, there are more than 70,000 startups in India, of which more than 100 are unicorns. We stand ready to share our experience with member states. Colleagues, in this context, I would like to express my gratitude to all of you for supporting India's proposal of creation of 2 new working groups on startups and innovation and on traditional medicines last year. I'm happy to note that the regulations to operationalize these working groups have been approved by member states. Excellencies, SCO is in its 3rd decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I'm pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of member states for the long-standing demand of India to make English as the 3rd official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking member states of the SCO and will take the work of this organization to a wider global audience. I'm happy to note that the progress on ongoing process for the admission of Iran and Belarus as full members of the SCO. I thank the Secretariat for their efforts in that direction. Similarly, I'm delighted that 4 new dialogue partners will sign the MOU for their association with SCO today in Goa. We welcome our new dialogue partners and hope to intensify engagement with them in the SCO format. Excellencies, India has proposed a New Delhi declaration as an SCO summit declaration and 4 other thematic joint statements on cooperation in de-radicalization strategies, promotion of millets, sustainable lifestyles to address climate change, and digital transformation. I seek your support in timely finalization of these documents for approval by our leaders at the SCO summit. I'm confident that today's meeting would lead to fruitful discussions which would help in sustaining the momentum of our cooperation. I once again wholeheartedly thank you all for your support for the first ever SCO presidency of India, and I sincerely hope that we can get together to make the SCO Heads of State Summit meeting a great success. Thank you. With that, may I now request our friends from the media to please leave the meeting hall so that the proceedings can thereafter continue. तीखा प्रहार करते हुए और ये उन्होंने कहा कि अभी भी आतंकवाद को हराया नहीं जा सका है। टेरर फंडिंग को रोकने की बात उन्होंने कही है। सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एस जयशंकर ने आज एससीओ के इस दूसरे दिन की मीटिंग में कहा। मीडिया की मौजूदगी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 8 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं और इस बड़े मंच से यानी कि एससीओ के इस बैठक से एक बार फिर से भारत ने आतंकवाद को लेकर अपना स्टैंड स्पष्ट किया है और कहा है कि आतंकवाद सबसे बड़ी प्राथमिकता है उससे निपटना और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये दुखद है, हम सब मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। हर हाल में उसे रोकना होगा। चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर से तीखे लफ्जों में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपने एस जयशंकर को सुना, विदेश मंत्री जिन्होंने तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष यहां पर रखा है। एससीओ बैठक
और इसमें उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग को रोका जाए, आतंकवाद से मुकाबला हर हाल में जरूरी है, आतंकवाद को अभी हराया नहीं जा सका है। ये एस जयशंकर ने आज इस मंच से कहा, हम सब मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। उन्होंने ये अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो तमाम देशों के प्रतिनिधि आज इस बैठक में मौजूद हैं, सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, सब आगे आएं और मिलकर आतंकवाद से सामना करें, मिलकर इसे हराएं। आतंकवाद को भी हराया नहीं जा सका है, यह जयशंकर ने कहा। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन को संदेश भी उन्होंने दिया और ये कहा इस बड़े मंच से कि सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता है, आतंकवाद से लड़ाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एससीओ की बैठक और इसमें जो विदेश मंत्री हैं उनकी मौजूदगी। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए तमाम देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन बहुत दिलचस्प है कि बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर पहुंचे और जब दोनों के बीच में मुलाकात हुई, बॉडी जेस्चर से आपको बहुत कुछ नजर आएगा क्योंकि हाथ नहीं मिलाया दोनों ने। पाकिस्तान और चीन के जो विदेश मंत्री यहाँ पर मिले एस जयशंकर से, तो भारत ने एक संदेश भी दिया है। भारत ने ये बताने की भी कोशिश की है कि आप अगर अपने नापाक मंसूबों को लेकर आए हैं तो उसकी कोई जगह नहीं है और आपको इन तस्वीरों के जरिए वो समझ भी आएगा, चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हों या फिर चीन के विदेश मंत्री। 8 देशों के विदेश मंत्री क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, 8 दूसरा दिन है और सबसे अहम यह है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पर अपनी बात को रखा तो अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने इसी बात से की है कि आतंकवाद को खत्म करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आतंकवाद किसी हाल में बर्दाश्त नहीं। ये उन्होंने कहा किसी भी हाल में आतंकवाद को उचित नहीं कहा जा सकता है और आतंकवाद से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये उन्होंने बात भी की और ये भी कहा कि आतंकवाद को खत्म करना मानवता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत ने एक बार फिर से अपने स्टैंड को स्पष्ट किया। टेरर फंडिंग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसे फौरन रोका जाए और इसके लिए हर किसी को अपने स्तर से पहल करनी होगी। ये भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से, और ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है रूस चीन के साथ भारत की द्विपक्षीय बैठक, और ये क्योंकि एससीओ की जो बैठक है वो कल से शुरू हुई थी और आज क्योंकि आज इसका दूसरा दिन है, आज भी कई सारी मीटिंग्स जो हैं वो प्रस्तावित हैं। लेकिन ये जो बैठक है इस लिहाज से बेहद दिलचस्प है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं और जाहिर है कि आतंकवाद के मुद्दे पर जब भारत ने हमेशा ये बात कही है कि बॉर्डर क्रॉस जिस तरीके से हालात इस वक्त हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कमोबेश जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपना संबोधन यहाँ पर दे रहे थे तो उन्होंने यही बात की है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ चीन के विदेश मंत्री तो वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो जेस्चर से बहुत कुछ पता चलता है। हाथ नहीं मिलाया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये बताने की कोशिश की है कि एक साथ ये दो चीजें नहीं चलेंगी। अगर आप बातचीत करते हो तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत करें, आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कमलेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी हम सुन रहे थे, आतंकवाद पर तीखा प्रहार उन्होंने कहा और ये कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में देश हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। संघाई कोऑपरेशन ग्रुप में द्विपक्षीय मसलों पे बातचीत होती है और कम से कम ऐसे मसलों पे बात होती है जिसमें कि संघाई कोऑपरेशन ग्रुप के सदस्य देशों की साझा विरासत हो। और ऐसे में आपको याद होगा कि आतंकवाद से न केवल भारत पर परेशान है, पाकिस्तान में कुछ हद तक परेशान, और अभी आप देखोगे रसिया भी कुछ से परेशान है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार बोलते हैं तो साफ है कि एससीओ की जो मीटिंग का एजेंडा उन्होंने तय कर दिया है और एससीओ की मीटिंग में वो चाहते हैं कि एक साथ जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो निकल के आए सभी संयुक्त 5 देशों का, उसमें ये जरूर जाहिर हो कि एससीओ की मीटिंग में सभी दल ये सहमत हो कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और द्विपक्षीय मामलों के साथ साथ जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। तो अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समझिए कि एससीओ देशों की अध्यक्षता करना भारतीय के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब देखना होगा कि बारी बारी से सभी सदस्य देशों को बोलना है तो क्या और सदस्य देश भी भारत के इस एजेंडे का सपोर्ट करते हैं या फिर
सबकी निगाहें बिलावल भुट्टो पे है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तो क्या वो अपने हिसाब से बोलते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन कमलेश, इस दौरान एक तस्वीर सामने आई और इसमें हमने देखा कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, एक तरफ बिलावल भुट्टो हैं, दूसरी तरफ एस जयशंकर हैं, हाथ मिलाने की वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका जो लहजा था, और भारत ने इस दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर बॉडी जेस्चर में तब्दीली नजर नहीं आई विदेश मंत्री एस जयशंकर की, वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं इससे कि एक साथ दो चीजें नहीं चलेगी, आपको सीमा पार आतंकवाद को बंद करना होगा। कमलेश, ठीक है, शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से, और साथ ही साथ ये बड़ी खबर कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। और अब देखना होगा कि आज के दिन की और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक और आज दूसरा दिन, और इसमें जाहिर है कि तमाम तरह के जो मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर होने वाली है, तमाम तरह के जो प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, जो क्षेत्रीय चुनौतियाँ हैं उससे जुड़े मसले भी यहाँ पर रखे जाएंगे तमाम उन मुल्कों की ओर से जो कि आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भारत ने अपने स्टैंड को एक बार फिर से क्लियर करते हुए आतंकवाद का जिक्र किया और ये कहा कि कोरोना काल में भी किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशें कई मुल्कों की तरफ से की गई, और इसकी निंदा और साथ ही साथ ये भी अपील कि सबको साथ आकर इससे मुकाबला करना होगा, हमें आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। और साथ ही साथ टेरर फंडिंग को लेकर भी उन्होंने अपनी बात की है। आतंकवाद से मुकाबला एससीओ का मूल उद्देश्य है, ये आज उन्होंने अपने संबोधन में कहा है।